پاکستان نے مصنوعی ذہانت کے میدان میں انقلابی پیش رفت۔ کراچی کے طلبہ نے انسان نما روبوٹ تیار کر لیا۔ مصنوعی ذہانت کی مدد سے تیار کردہ مارک 1 نامی روبوٹ انتہائی دلچسپ اور کارآمد ہے اور انسانوں کی طرح باتیں بھی کرتا ہے۔ آئیے اس شاندار روبوٹ سے ملوا رہی ہیں عائشہ آفرین۔ روبوٹ نما انسان تو آپ نے بہت دیکھے ہوں گے، لیکن آج میں آپ کو ملوانے جا رہی ہوں ایک ایسے روبوٹ سے جو انسانوں کی طرح دکھتا ہے، اور یہ AI ٹیکنالوجی پر مبنی ایک ایسا روبوٹ ہے جو نہ صرف انسانوں کی طرح حرکات و سکنات کر سکتا ہے بلکہ انسانوں کی طرح سوچ سمجھ بھی سکتا ہے اور بات چیت بھی کر سکتا ہے۔ تو میں آپ کو زیادہ انتظار نہیں کرواتی اور میں آپ کو لے کر چلتی ہوں اس روبوٹ کے پاس جو اس وقت میرے ساتھ ہی کھڑا ہوا ہے اور ہماری باتیں سن رہا ہے اور ہمیں دیکھ رہا ہے اور سمجھ رہا ہے، ماحول کو سمجھ رہا ہے۔ سب سے پہلے اس سے بات کرتے ہیں۔ Hi Aisha. Hello, I'm fine. What's your name? I am called Mark. Okay, Mark. How are you? I'm very well. How are you doing? I'm good. Where are you? I'm everywhere, and I am also in your computer. ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ پاکستانی طالب علم کسی سے کم نہیں، کراچی کے طالب علموں نے اسے ثابت کر دکھایا۔ اب انسان سے کام لینے کا زمانہ گیا، انسان کی جگہ اب روبوٹ لیں گے۔ گھر کا کام ہو یا آفس کا کام، روبوٹ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ نسٹ یونیورسٹی کراچی کے طلبہ نے ایسا کارنامہ کر دکھایا جس نے دنیا کو حیران کر دیا۔ طلبہ نے ایک ایسا روبوٹ تیار کر لیا جو AI ٹیکنالوجی پر مبنی ہے اور پاکستان کا پہلا پروٹوٹائپ روبوٹ ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ مارک کے پارٹس 3D پرنٹر سے حاصل کیے گئے ہیں۔ مارک 1 نامی اس روبوٹ کو تیار کرنے والی ٹیم کے پریزیڈنٹ انجینئر حسن علی کا کہنا ہے کہ AI ٹیکنالوجی ہونے کے باعث یہ کسی بھی شعبے میں کام کر سکتا ہے، اس کی کوئی حدود متعین نہیں۔ تو یہ جو ہم نے روبوٹ بنایا ہے یہ 25 اسٹوڈنٹس کی ٹیم نے بنایا ہے 4.5 مہینوں میں، کہ اس کی پوری باڈی میں فل باڈی موومنٹ ہے، سارے بالکل جیسے اس کا نام ہے ہیومنوائڈ، ہیومن لائک موومنٹ ہے پوری باڈی میں۔ یہ انسانوں کی طرح آپ سے بات کر سکتا ہے، ساری آپ کی باتوں کو سمجھ سکتا ہے، انٹیلیجنٹ رسپانسز دے سکتا ہے۔ اس کو ہم نے انٹرنیٹ سے کنیکٹ کر لیا تاکہ یہ انفارمیشن فوری طور پہ نکال کے دے سکتا ہے۔ ہم نے جس لیول کی فیس اینڈ جیسچر ریکگنیشن ڈالی ہے وہ دیٹ از سم تھنگ ویری نیو۔ اس کے علاوہ اس کی جو فل باڈی موومنٹ ہے، دا فیکٹ کہ یہ پورا 3D پرنٹڈ ہے، یہ ساری ایسی چیزیں ہیں یہ پاکستان میں اور کسی نے نہیں کی ہیں۔ ایکسیڈنگلی ورسٹائل، یو کین اپلائی اٹ ویئر ایور یو وانٹ، اس کی کوئی لمیٹیشن نہیں ہے۔ مصنوعی ذہانت پر مبنی یہ روبوٹ 250 سے زائد پارٹس جوڑ کر بنایا گیا ہے۔ مارک کے پاس صرف مصنوعی ذہانت ہی نہیں بلکہ بصارت بھی موجود ہے اور یہ نظر آنے والی چیزوں کو دیکھ کر ان کو اپنی یادداشت میں محفوظ کر سکتا ہے۔ ہاتھ ہلانے، چیزوں کو پکڑنے، بات کرنے، سمجھنے، شناخت کرنے اور انسانوں کی طرح حرکات کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ مارک نہ صرف خود بلکہ انٹرنیٹ کی مدد سے بھی بیش بہا معلومات فراہم کر سکتا ہے۔ انجینئرز کا کہنا ہے کہ جتنی زیادہ اس سے بات چیت کی جائے یہ اتنا ہی زیادہ ٹرین ہوتا رہتا ہے اور اسے بنانا ایک پیچیدہ عمل ہے۔ جتنی آپ اس سے بات چیت کریں گی اتنی زیادہ یہ ٹرین ہوتا رہے گا، اتنا زیادہ یہ کام کرتا رہے گا۔ یہ پورا کا پورا پلاسٹک مٹیریل ہے، یہ 3D پرنٹ ہوتا ہے، اس کو ABS پلاسٹک کہتے ہیں۔ پاکستان روبوٹکس کا کلچر نہیں ہے، تو ہم نے دیکھا یار باقی پوری دنیا میں اس طرح کے کلچر بن رہے ہیں اور ساری چیزیں ہو رہی ہیں، تو اسی لیے یہاں سے ہم نے انیشیٹ لیا۔ ہم نے مارک اپنے سینسرز کی مدد سے حاصل ہونے والی معلومات کے مطابق رد عمل ظاہر کرتا ہے۔ اسے ذاتی معاونین، ہاسپٹل اور ریسیپشنسٹ جیسے شعبے میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ جدید دنیا میں روبوٹس کی بہت زیادہ مانگ ہے اور پاکستان سے وابستہ مختلف صنعتیں اس ہیومنائڈ روبوٹ ٹیکنالوجی کو اپنانے کے لیے بہت پرجوش دکھائی دے رہی ہیں۔ مارک، گیو می مائی مائک۔ تھینک یو۔ فلمز میں دکھائی دیے جانے والے روبوٹس اب اصل زندگی میں بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مختلف کام کرنے کی صلاحیت رکھنے والے یہ انسان نما روبوٹس ہماری زندگی کو بہت زیادہ آسان بنانے والے ہیں۔ کیمرہ مین وقاص لودھی کے ساتھ عائشہ آفرین، سٹی 21۔ مستقبل کے اسٹار میدان میں پہلا کمشنر کراچی کپ، 2 بہنوں نے اپنی شاندار کارکردگی سے دیکھنے والوں کو حیران کر دیا۔ 10 سالہ فاطمہ دانش اور 7 سالہ سارہ دانش ٹیبل ٹینس کی ایسی اسکلز دکھائیں کہ دیکھنے والے دیکھتے رہ گئے۔ ہمنا نثار کی رپورٹ۔ چھوٹی سی ایک لڑکی ہوں لیکن کام کروں گی بڑے بڑے، یہ کہاوت بخوبی بیٹھتی ہے کراچی کی 10 سالہ فاطمہ دانش تھے، جنہوں نے جب اپنے ٹیبل ٹینس کی ریکٹ چلایا تو بڑے بڑوں کو زیر کر دیا۔ آئیے آپ کو ملواتی ہوں فاطمہ اور ان کی چھوٹی بہن سارہ سے۔
पहला कमिश्नर कराची कप। इस मुकाबले में कुछ खास बात और वो है दो नन्ही मुन्नी बहनों की शानदार टेबल टेनिस की सलाहियतें, जिससे उन्होंने शायकीन से खूब दाद वसूल की। फातिमा दानिश कई टूर्नामेंट में टेबल टेनिस के मुकाबलों में अपनी फतह का झंडा लहराता आ रही हैं, जिनकी साथ ही उनकी छोटी बहन सारा दानिश हैं, जो खुद भी टेबल टेनिस की उभरती हुई सितारा हैं। फातिमा और सारा ने टेबल टेनिस की मुख्तलिफ टेक्निक्स में महारत के हवाले से बताया। एशियन गेम्स भी होते हैं, एशियन चैम्पियनशिप भी होती है, तो वहाँ पे पूरी ऑल ओवर एशियन कंट्रीज़ आई हुई होती है जो अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करने आई हुई होती हैं और वो बहुत अच्छा खेलती हैं। तो मैं भी चाहती हूँ कि मैं आगे जाके इन गेम्स में पाकिस्तान का नाम रोशन करूँ। मैं टॉप स्पिन में ज़्यादा अच्छी हूँ और मैं अपनी बहन से ज़्यादा हम दोनों एक साथ प्रैक्टिस करते हैं हमेशा, हम दोनों आपस में गेम्स भी खेलते हैं। तो मैं टॉप स्पिन में ज़्यादा अच्छा खेलती हूँ और ये ज़्यादा अपना बैकहैंड अच्छा खेलती है। वालिदैन कहते हैं बच्चियाँ हमारे लिए बाइसे फ़ख्र हैं। अगर हुकूमत इनके किट के अखराजात में मदद करे तो फातिमा और सारा खेल में कभी मायूस नहीं करेंगी। स्टार्ट हमारा कोई मतलब ऐसा जो है वो इंटेंशन नहीं था कि इतने मतलब माशाल्लाह जो है वो कामयाबी मिलेगी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने साथ दिया और फिर इनके कोचेस वगैरह का भी सपोर्ट रहा। इतना अच्छा टैलेंट है कि इतनी छोटी उम्र में अगर इतना अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, अगर इनको मिले कोई सपोर्ट तो ये मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह बहुत सारे बच्चे ऐसे निकलेंगे जो पाकिस्तान का नाम रोशन नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे अच्छा नाम रोशन कर सकते हैं। सारा और फातिमा को कोयटा नेशनल गेम्स 2023 की सबसे कम उम्र खिलाड़ी होने का भी एजाज़ हासिल है। टेबल टेनिस के इंटरनेशनल चाइनीज प्लेयर सुनील शाह जैसा बनने के ख्वाब सजाए ये दो नन्ही बच्चियाँ फातिमा और सारा मुस्तकबिल में अपनी बेहतरीन कारकर्दगी दिखाकर पाकिस्तान का नाम रोशन करने के ख्वाहिशमंद हैं। कैमरामैन हसन मेहदी के साथ हमना निसार, सिटी 21। कोलोरस उस्मान के नाम से पाकिस्तान में मकबूल टर्किश अदाकार बुराक कहते हैं, पाकिस्तानी ड्रामे और फिल्म में काम करना चाहता हूँ, अच्छी ऑफ़र हुई तो ज़रूर काम करूँगा। रिपोर्ट करेंगे राहिल बेग। टर्किश अदाकार बुराक की कराची आमद। अदाकार मारूफ ब्रांड की दावत पर कराची पहुंच गए। कॉन्फ्रेंस से खिताब में बोले, पाकिस्तान से दरीना ताल्लुकात और दोस्ती है। पाकिस्तानी आवाम की मोहब्बत पर उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। Çünkü dediğiniz gibi bizim ülkemizden de bakış açımız aynı. Ben buraya zaten duyduğumda gelmeyi çok istiyordum. Tabii bugün parfümle birlikte oldu bu. Ceydat buna çok vesile oldu, sağ olsun. Ben çok merak ediyordum. Daha önce gelme fırsatım olmadı, bu ilk gelişim. एक सवाल के जवाब में अदाकार बुराक का कहना था, पाकिस्तानी ड्रामे और फिल्म में काम करना चाहता हूँ। Yani şöyle dediğim gibi bu tamamen iletişimle, nasıl mesela Ceydat geldi, parfümle ilgili biz konuştuk. Bununla ilgili de benim konuşmam lazım, toplantı yapmamız lazım. Onun üzerine bir şeyler söyleyebilirim aslında. Yani ben tabii ki oynamak isterim ama bu tamamen proje işi, biraz yaklaşımla ilgili. Yani Pakistan'dan bir adım görürsem neden olmaz? बुराक बोले, कुर्लिस उस्मान को पाकिस्तान में भी पसंद किया जा रहा है। पाकिस्तान देखने की ख्वाहिश थी, अब पाकिस्तानी खानों से लुत्फ अंदोज होऊंगा। अदाकार बुराक 2 रोजा मुख्तसर दौरे पर कराची आए हैं। कैमरामैन अजलान चीपा के साथ राहिल बेग, सिटी 21। इंतखाबात का ऐलान होते ही सियासी जमातों की तैयारियां तेज हो गईं। MKM ने 15 अक्टूबर को होने वाले जलसे की तैयारियों के हवाले से इजलास तलब कर लिया। इजलास में कराची के टाउन्स में जलसे की तारीखों का तयन किया जाएगा। आम इंतखाबात की तैयारियों से मुतालिक मुशावरत भी होगी। टिकटों की तकसीम के लिए पार्लिमानी बोर्ड बनाने पर बातचीत होगी। तफसीलात जानेंगे, शेब मुख्तार हमारे साथ मौजूद हैं। शेब, अपडेट करें। जी बिल्कुल, MKM पाकिस्तान की राब्ता कमेटी का औरंगी टाउन ऑफिस में इजलास जारी है। इस इजलास में 15 अक्टूबर को औरंगी टाउन में होने वाले जलसे के लिए कमेटियां तश्कील देने पर भी जो है मुशावरत की जा रही है। इजलास में कराची के दीगर टाउन्स में जलसे की तारीखों का भी जो है वो तयन किया जा रहा है, जबकि इस अहम तरीन इजलास में तमाम तर अरकान राब्ता कमेटी भी शरीक है। इजलास में आम इंतखाबात की तैयारियों से मुतालिक भी जो है मुशावरत की जा रही है, जबकि टिकटों की तकसीम से मुतालिक जो है MKM की जानिब से इस इजलास में पार्लिमानी बोर्ड बनाने से मुतालिक भी जो है मुशावरत की जाएगी। जी ठीक है शेब मुख्तार, बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको बताएं कि सरकारी गाड़ी में ममनुआ अशिया ले जाने के लिए इस्तेमाल करने का इंकशाफ।
महकमे बल्दियात सिंध ने टैक्सेशन अफसर अब्दुल करीम को मुअत्तल कर दिया। एडिशनल सेक्रेटरी बल्दियात को तहकीकात करके 5 रोज़ में रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत भी कर दी। ठट्टा पुलिस ने सरकारी गाड़ी से मुनशियात बरामद करके सरकारी मुलाजिम को गिरफ्तार किया था। तफसीलात जानेंगे, आज़ाद नोरियो हमारे साथ मौजूद हैं। आज़ाद, अपडेट करें। जी बिल्कुल, ठट्टा पुलिस की जानब से रंगे हाथों गिरफ्तार महकमा बल्दियात के टैक्सेशन अफसर अब्दुल करीम कुंभार के खिलाफ जो एक मुकदमा दर्ज हुआ, जिसके बाद महकमा बल्दियात के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जो मंजूर अली शेख ने इस मामले का सख्ती से नोटिस लेते हुए टैक्सेशन अफसर जिला काउंसिल ठट्टा अब्दुल करीम कुंभार को ओहदे से मुअत्तल कर दिया और उनके खिलाफ एडिशनल सेक्रेटरी बल्दियात को तहकीकात करने का भी हुक्म दिया और 5 रोज के अंदर रिपोर्ट देने की हिदायत की है। अब्दुल करीम कुंभार को रात गए ठट्टा जिला में टाकाने स्टाफ पर पुलिस ने मंशा समेत गिरफ्तार किया था और सरकारी गाड़ी GST 767 नंबर जो है वो भी उस गाड़ी में मंशा थी और ये अफसर भी गाड़ी के अंदर सवार था। ठट्टा पुलिस ने इनके खिलाफ मंशा फरोशी का मुकदमा दर्ज किया, जिसके बाद ये मामला महकमा बल्दियात तक पहुंचा तो महकमा बल्दियात ने इनके खिलाफ कार्रवाई कर दी है। जबकि पुलिस ने गाड़ी और अफसर को तहवील लेकर मुकदमा दर्ज किया है, लेकिन जो अब्दुल करीम कुंभार है वो जिला काउंसिल ठट्टा में टैक्सेशन अफसर के तौर पर तैनात है। लेकिन पुलिस का दावा ये है कि ये ठट्टा जिला में सरकारी गाड़ी में मंशा फरोशी का कारोबार करते थे। कई बार इनका पीछा किया, लेकिन रात गए पुलिस की हत्या और उनको मंशा समेत तहवील लेकर मुकदमा दर्ज कर दिया। लेकिन महकमा बल्दियात ने इस मामले का सख्ती से नोटिस दिया, सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल करने पर इनके खिलाफ तहकीकात का भी हुक्म दे दिया है। जी ठीक है, तहकीकात का हुक्म दे दिया गया है। आज़ाद नोरियो, बहुत शुक्रिया आपका। कराची में पीपल्स बस सर्विस सड़कों पर कामयाबी से रवां दवा है। आहिस्ता आहिस्ता शहर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बेहतरी आ रही है। गुज़श्ता दिनों गवर्नर सिंध की जानिब से SMTA लॉ पर दस्तखत किए गए। MD SMTA कहते हैं कानून में तरमीम की गई है, जल्द मजीद नई बसें कराची आ रही हैं। आदिया नाज की रिपोर्ट। कराची में BRT के 2 मंसूबे जबकि पीपल्स बस सर्विस की मुख्तलिफ सर्विसेज काम कर रही हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के मंसूबों पर तेजी से काम जारी है, जबकि रेड लाइन बस सर्विस के प्रोजेक्ट पर भी तरक्याती काम चल रहा है। गुज़श्ता दिनों गवर्नर सिंध की जानिब से SMTA लॉ पास किया गया। ये कानून है क्या? इस हवाले से MD SMTA कमाल दायो का बताना है कि हमारा SMTA का एक्ट 2016 का एक्ट है और जो बिल पास हुआ है वो मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस 1965 है, जिसमें तरमीम की गई है। नए कानून के मुताबिक BRT के कॉरिडोर में जहां इंटरफेरेंस होती है, इसके हवाले से कानून की जरूरत थी। अगर कोई बाहर से या बस के अंदर इंटरफेरेंस करता है तो नए कानून के तहत उन पर जुर्माने आयद होंगे। BRT में अगर कोई वायलेशन होती है अंदर बस में या बाहर से कोई BRT कॉरिडोर में कोई आ जाता है तो उसमें मुख्तलिफ किस्म के जुर्माने जो हैं वो रखे गए हैं। 500 से लेके 5000 तक के जुर्माने हैं। ये इसका शेड्यूल 12 था, उसमें ये अमेंडमेंट की गई है। कमाल दायो ने बताया कि रवां माह चीन से मजीद 30 नई बसें आ रही हैं। जल्द कराची वालों को नई बसें मुहैया करेंगे। 30 मजीद बसेस जो हैं वो थोड़े दिनों में इंशाल्लाह विद इन वीक टाइम 30 मजीद बसेस का इजाफा हो जाएगा। वो पोर्ट पे आ चुकी हैं, थोड़े दिनों में उनका भी हम रूट फाइनल करके वो भी आपको कराची की सड़कों पे नजर आएंगी। 30 मजीद बसेस हैं यूटोंग की। पीपल्स बस सर्विस की मजीद बसें आने से शहर में ट्रांसपोर्ट में मजीद बेहतरी आ जाएगी। इन बसों को नए रूट्स पर चलाया जाएगा। कैमरामैन साजिद अली के साथ आदिया नाज, सिटी 21। ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए मेयर कराची ने कमर कस ली। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब कहते हैं UC 13 सदर और UC 3 माड़ीपुर की नशिस्त पर कागजात नामजदगी जमा करा दिए हैं। पीपल्स पार्टी की क़यादत का मशकूर हूँ जिसने मुझ पर एतमाद किया। साजिशें उसी के खिलाफ होती हैं जो कुछ करने की कोशिश करता है। शोएब मुख्तार की रिपोर्ट। मेयर कराची 3 UCs के ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए तैयार हो गए। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने आज UC 13 सदर और UC 3 माड़ीपुर की नशिस्त पर कागजात नामजदगी जमा करा दिए। RO ऑफिस जिला जुनूबी में मीडिया से गुफ्तगू में मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब बोले, कानूनी एतबार से मुझे 6 माह में इलेक्शन लड़ना जरूरी था। आज कागजात नामजदगी जमा करा दिए हैं। पीपल्स पार्टी का एक जियाला इस शहर की खिदमत में मसरूफ है। गुजार हूँ इस उम्मीद के साथ कि जो इज़्ज़त अफजाई आप लोगों ने मेरी की है और जिस बड़े ओहदे पर आपने मुझे मुंतखब किया है, मैं इंशाल्लाह उसका हक़ अदा करूँगा, अपनी पार्टी की तर्जुमानी करूँगा और इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक कारकुन, एक जियाला कराची शहर की खिदमत करेगा।
اور کراچی شہر کو تبدیل کرنے کے لیے, بہتر کرنے کے لیے انشاءاللہ اپنا اپنا کردار ادا کرے گا. بہت شکریہ. شہر میں جلد کراچی میٹروپولیٹن یونیورسٹی بنانے کا اعلان کرتے ہوئے میئر کراچی کا کہنا تھا کہ یونیورسٹی بنانے سے متعلق قانون سازی مکمل کر لی ہے. بہتری کا سفر آئندہ 4 سالوں میں لوگوں کو نظر آ جائے گا. جلد واضح ہو جائے گا ترازو نے اس شہر کی خدمت کی یا تیر نے. میں نے کراچی میٹروپولیٹن یونیورسٹی کا قانون سازی کرا لی ہے. انشاءاللہ اب کراچی میٹروپولیٹن یونیورسٹی بنے گی. اپنے کام سے یہ ثابت کریں گے کہ کراچی والوں نے جو 15 جنوری کو فیصلہ کیا تھا نا بلاول بھٹو زرداری صاحب کے حق میں, وہ بالکل درست فیصلہ تھا. اب انشاءاللہ اگلے الیکشن میں پھر فیصلہ کریں گے تیر کے حق میں, اور آپ دیکھیے گا یہ پورا شہر یک زباں ہو کے جیے بھٹو بولے گا. بیرسٹر مرتضی وہاب کا کہنا ہے کہ اس شہر کی خوبصورتی میں اضافہ کریں گے. کیمرامین عمران احمد کے ساتھ شعیب مختار, سٹی 21.